what the Bible says concerning God's provision for our future. हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर के प्रबंध के विषय में बाइबल क्या कहती है? See, we have two problems basically as human beings. देखिए, हमारी मनुष्य के रूप में मूल रूप से दो समस्याएं हैं. All human beings have the same problem. Whatever our religion, whatever our culture, whatever our language, whatever our education or temperament or anything. सभी मनुष्य की समस्याएं समान है, चाहे हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी शिक्षा, हमारा स्वभाव या और कोई भी बात क्यों ना हो. And we could simplify these two problems by putting them in two categories. हम इन समस्याओं को दो श्रेणियों में रखकर सरल रूप में देख सकते हैं. One, it is a problem relating to our past, our guilt and our failures, our sins. एक हमारे अतीत से संबंधित समस्या है, हमारा अपराध बोध, हमारी विफलता, हमारे पाप. And the other is problems relating to the future. और दूसरी है भविष्य से संबंधित समस्या. How are we going to deal with what comes forth from our nature in future? कि भविष्य में हमारे स्वभाव से कैसा व्यवहार निकलता है, उससे हम कैसे निपटेंगे. Is it going to be a repetition of the same old failures in the past? क्या यह हमारे अतीत की उन्हीं पुरानी असफलताओं का दोहराव होगा? Do we have to keep on going to God again and again, asking Him to forgive us the same old sins that we have asked for many times in the past? क्या हमें बार बार परमेश्वर के पास जाते रहना है, उनसे हमें उन्हीं पुराने पापों को क्षमा करने के लिए कहना है जिनके विषय में हमने अतीत में कई बार क्षमा मांगी है? Or has God made some provision so that we can overcome in the areas where we failed in the past? या क्या परमेश्वर ने कुछ प्रावधान किए हैं ताकि हम उन क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर सके जहां हम अतीत में असफल हुए हैं? And the good news of the Bible is that God has made provision. बाइबल में अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर ने एक प्रावधान किया है. He's not only made provision for our past failures through Christ's death on the cross of Calvary. उसने न केवल कलवरी के क्रूस पर मसीह की मृत्यु के माध्यम से हमारी पिछली विफलताओं के लिए एक प्रावधान किया है. That was a complete and total taking care of our past failures. जहाँ की हमारी पिछली विफलताओं का पूर्ण और संपूर्ण ख्याल रखा गया था. He's also provided for this problem of the possibility of our failing again and again in the same areas in the future by offering us the gift of His Holy Spirit. लेकिन उन्होंने हमारे फिर से विफल होने की संभावना की इस समस्या के लिए भी प्रावधान किया है कि भविष्य में फिर से उन्हीं क्षेत्रों में विफल होने के लिए हमें उनकी पवित्र आत्मा का वरदान की भेंट दी है. Now, Jesus said to His disciples when He was on earth just before He went up to heaven, अब यीशु ने अपने चेलों से कहा जब वो पृथ्वी पर था, स्वर्ग पर उठाए जाने से ठीक पहले, He said that it is good for you that I go away, because when I go, I will send the Holy Spirit from heaven to dwell in your hearts. कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं चला जाऊं, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को स्वर्ग से तुम्हारे हृदय में वास करने के लिए भेजूंगा. The Holy Spirit is the very person of God, the Spirit of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर का ही व्यक्तित्व है, परमेश्वर का आत्मा है. And this is a gift freely given by God to us, just as much as forgiveness of sins. और यह परमेश्वर द्वारा हमें स्वतंत्र रूप से दिया गया वरदान है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पापों की क्षमा. The first day that the Christian message was preached in this world was 2000 years ago. इस संसार में मसीह संदेश का प्रचार किया जाने वाला पहला दिन 2000 साल पहले था. And it's described in Acts of the Apostles chapter 2. और इसका वर्णन प्रेरितों के काम 2 में किया गया है. It was the Jewish feast of Pentecost when many people had come together in Jerusalem. यह पेंतकोस्त का यहूदी पर्व था जब यरूशलेम में बहुत से लोग एक साथ आए थे. And the apostle Peter got up and proclaimed the gospel message that Christ had died and had risen again from the dead and had ascended to heaven and had poured out His Holy Spirit that had filled the hearts of these 120 people who were praying that day in Jerusalem. प्रेरित पतरस ने उठकर सुसमाचार का संदेश सुनाया कि मसीह मरा और वह मरे हुओं में से जी उठा और फिर स्वर्ग पर उठाया गया, और यह कि उसने अपना पवित्र आत्मा उंडेल दिया है जिसने उन 120 लोगों के मनों को भर दिया था जो उस दिन यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे थे. And then he said to all the thousands of people who were listening to him these words in Acts 2 verse 38. तब पतरस ने उन हजारों लोगों से जो उसकी बात सुन रहे थे प्रेरितों के काम 2:38 में ये शब्द कहे. He said, repent. We considered what that meant. मन फिरा करो. हमने ये सुविचारित किया है कि इसका क्या अर्थ है.
And let each of you be baptized. और तुम में से हर एक पानी में डूबकर बपतिस्मा लो। And that is being immersed in water to symbolize a break with the past, the burial of the old man, and a resurrection of being a new man. जो कि अपने पुराने व्यक्तित्व से नाता तोड़ने का प्रतीक है, अतीत जो कि पुराना मनुष्यत्व है उसे दफन करना। That's the symbolism of going into the water and coming out in baptism. यह पानी में डूबकर और बपतिस्मा लेकर बाहर आने का प्रतीक है। That my old man is dead and buried, and now I am a new man in Christ. मेरा पुराना मनुष्यत्व मर गया है और गाड़ा गया है और अब मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ। And then he said, if you do that, you will receive 2 gifts. और फिर उसने कहा यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 वरदान प्राप्त होंगे। One, the forgiveness of your sins. That deals with our past. एक, आपके पापों की क्षमा जो हमारे अतीत से संबंधित है। And second, you will receive the gift of the Holy Spirit. और दूसरा, आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। That's God's provision for the यह future. भविष्य के लिए ईश्वर का प्रावधान है। So both our problems are dealt with, our past as well as our future. इसलिए हमारी दोनों समस्याओं से निपटा जाता है, हमारे अतीत के साथ साथ हमारे भविष्य के बारे में भी। The taking care of the guilt of our past हमारे अतीत के अपराध बोध का ध्यान रखा गया है and the provision of strength to overcome when I'm faced with temptation and problems in the और coming days. प्रलोभनों का सामना करने पर काबू पाने के लिए सामर्थ्य के प्रावधान का ध्यान रखा गया है और भविष्य की समस्याओं का भी। Now many Christians think only that God has dealt with our past problem. And like I said in my last study, you can receive from God only what you have faith for. अब कई मसीही सोचते हैं कि परमेश्वर ने केवल हमारी पिछली समस्याओं का समाधान किया है। जैसा कि मैंने पिछले अध्ययन में कहा था, आप परमेश्वर से केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए आपको विश्वास है। If you don't believe, you cannot receive. यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। If you don't believe, for example, that God will give you strength to face your problems in the future, you won't receive it. उदाहरण के लिए यदि आप विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर आपको भविष्य में आपकी समस्याओं का सामना करने की सामर्थ्य देगा तो आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। You may desire it. God may also desire to give you that strength. आप इसकी इच्छा कर सकते हैं, परमेश्वर भी आपको सामर्थ्य देने की इच्छा रखते हैं, But you still won't receive if you don't have faith. लेकिन आप अभी भी प्राप्त नहीं करेंगे यदि आपके पास विश्वास नहीं है। Every gift of God is received by simple faith. परमेश्वर का हर वरदान साधारण विश्वास से प्राप्त होता है। It's not because we deserve it. ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम इसके लायक None हैं। of us deserve even the lowest of God's gifts. हम में से कोई भी परमेश्वर के सबसे छोटे वरदान के भी लायक नहीं है। We don't deserve anything but hellfire. हम नरक की आग के सिवा कुछ भी पाने के लायक नहीं है। All of us deserve judgment. हम सभी न्याय के पात्र हैं। All of us deserve to burn in hell for eternity because we have sinned. हम सभी अनंत काल के लिए नरक में जलने के योग्य हैं क्योंकि हमने पाप किया है। We have sinned deliberately. हमने जानबूझकर पाप किया है। We have dishonored God. हमने परमेश्वर का अपमान किया है। And so God places all humanity, the entire human race, under sin so that He can have mercy on everyone. इसलिए परमेश्वर सारी मानव जाति, पूरी मानव जाति को पाप के अधीन कर देता है ताकि वो सभी पर दया कर सके। This is God's way. यह परमेश्वर का मार्ग है To put us all under sin so that we all are in the same category, so that no one can boast over another saying, I'm better than you. हम सबको पाप का भागी करना कि हम सब एक ही श्रेणी में आ जाएं कि कोई दूसरे के प्रति यह कहकर घमंड न करे कि मैं तुझसे उत्तम हूँ। You know how many people there are in the world who think they're superior to others? आप जानते हैं कि संसार में कितने लोग हैं जो सोचते हैं कि वे दूसरों से श्रेष्ठ हैं। It's because they haven't seen themselves in God's eyes. ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने स्वयं को परमेश्वर की दृष्टि में नहीं देखा है। It's like I said in another study of the child who gets 20% thinking he's better than the child who gets 5%. यह वैसा ही है जैसा मैंने एक अन्य अध्ययन में कहा था, जहां 20% प्राप्त करने वाला बच्चा सोचता है कि वो 5% प्राप्त करने वाले बच्चे से बेहतर है। And worse than that, it's like the child who got 20% thinking he's far superior to the other child who got 19.5%. और उससे भी बुरी बात यह है कि जिस बच्चे को 20% अंक मिलते हैं वो यह सोचता है कि वो 19.5% प्राप्त करने वाले बच्चे से श्रेष्ठ है। How much superior is he really? वो वास्तव में कितना श्रेष्ठ है। And that is the foolishness of one man who thinks he's better than another. यह एक मनुष्य की उच्च स्तरीय मूर्खता है जो सोचता है कि वह दूसरे से बेहतर है। It's all relative. In God's eyes,
We're all failures. परमेश्वर की नजर में हम सभी असफल हैं And He gives us a promotion to the next class freely. और वह हमें अगली कक्षा में स्वतंत्र रूप से उन्नति देते हैं, That is forgiveness. यानी क्षमा। And He gives us strength to face the problem of our own sinful nature, the problems that we can face living in a world that is still under the curse. तब वह हमें हमारे स्वयं के पापी स्वभाव की समस्या का सामना करने की शक्ति देता है, वह समस्या जिसका सामना हम एक ऐसे संसार में रहकर कर सकते हैं जो अभी भी अभिशाप के अधीन है। And that is through the gift of His Holy Spirit. It's His own presence coming and dwelling in our hearts, filling our hearts, giving us strength from within. और वह है उसकी पवित्र आत्मा के वरदान के माध्यम से, यह उसकी अपनी उपस्थिति है जो हमारे हृदय में आती है और हमारे हृदय में निवास करती है, हमारे हृदय को भरती है, हमें भीतर से सामर्थ प्रदान करती है। You know, when Jesus was on earth, He could only encourage people and strengthen them from the outside. आप जानते हैं जब यीशु पृथ्वी पर थे, वह केवल लोगों को केवल बाहरी रूप से प्रोत्साहित कर सकते थे। He walked with the disciples. वह चेलों के साथ चला, He talked with them, but He could be only in one place at one time. उसने उनसे बात की, लेकिन वह एक निश्चित समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकता था। If He was in Galilee, He could not be in Jerusalem. यदि वह गलील में होता तो वह यरूशलेम में न हो सकता था। If He was in Jerusalem, He couldn't be in Galilee. यदि वह यरूशलेम में होता तो गलील में न हो सकता था। If He was in Palestine, He couldn't be in India. अगर वो फिलिस्तीन में होता तो भारत में नहीं होता And था। that would have been terrible if it had continued like that forever. यह भयानक होता अगर यह हमेशा के लिए इसी तरह जारी रहता, Because then we would always have to be, all of us would have to be where Jesus was. क्योंकि तब हम सभी को वहीं होना होता जहां यीशु शारीरिक रूप से मौजूद होते। And even that wouldn't help us because how many thousands could get near Him in any case? वह भी हमारी मदद नहीं कर पाता, क्योंकि उस हाल में कितने हजार उसके निकट आ सकते थे। And so Jesus said to His disciples, it's better that I go away. और इसलिए यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि यदि मैं चला जाऊं तो अच्छा है, Because if I go away, I will send my Holy Spirit who will come and dwell in your heart. क्योंकि यदि मैं जाऊं तो मैं अपनी पवित्र आत्मा भेजूंगा जो आकर तुम्हारे हृदय में वास करेगा। And that will bring my presence everywhere in the world. और वह मेरी उपस्थिति लाएगा सभी। All the disciples could receive this Holy Spirit in every part of the world and have the presence of Jesus with them wherever they are. सभी शिष्य इस पवित्र आत्मा को संसार के हर हिस्से में प्राप्त कर सकते हैं और वे जहां कहीं भी हो उनके साथ यीशु की उपस्थिति हो सकती है। And even better than that, और इससे भी बेहतर, not just wherever they are, but instead of having Jesus outside of them, they could have Jesus inside of them. And you know that's far better. न केवल वे कहीं भी हो बल्कि यीशु को अपने से बाहर रखने की बजाय वे अपने भीतर यीशु को रख सकते हैं। आप जानते हैं ये कहीं बेहतर है। Because you know, with the disciples, even though Jesus was with them for 3.5 years, क्योंकि शिष्यों के साथ भले यीशु 3.5 साल तक रहे, and even though He taught them, encouraged them, challenged them, rebuked them, blessed them in so many ways, और भले ही उन्होंने उन्हें सिखाया, उन्हें प्रोत्साहित किया और उन्हें चुनौती दी, उन्हें फटकार लगाई, उन्हें कई तरह से आशीर्वाद दिया, yet we see that at the end of 3.5 years, they were still competing with one another to see who would take over the leadership after Jesus died. फिर भी हम देखते हैं कि अंत में 3.5 साल के बाद वे अभी भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं कि यीशु की मृत्यु के बाद नेतृत्व कौन संभालेगा। They were still competing with one another for honor and position. वे अभी भी सम्मान और पद के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। That inward problem could not be dealt with even with Jesus' physical presence. उस आंतरिक समस्या का समाधान यीशु की शारीरिक रूप से उपस्थित होने से भी नहीं किया जा सकता था। Jesus' physical presence only dealt with external problems around them, like if there was a storm in the sea, He could still it. यीशु की भौतिक उपस्थिति केवल उनके आसपास की बाहरी समस्याओं से निपटती थी। अगर समुद्र में तूफान होता तो वह उसे शांत कर सकता था। Or if there was not enough food to feed the multitude, He could provide it. Or if there was not enough wine at a wedding, He could change the water into wine. या अगर उन सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं था तो वो इसे प्रदान कर सकता था, या अगर विवाह में पर्याप्त दाखरस नहीं थी तो वह पानी को दाखरस में बदल सकता था। External problems could be dealt with, बाहरी समस्याओं से निपटा जा सकता था, but the internal problem, which was far more serious, of sin within themselves, could not be dealt with as long as Jesus was outside. लेकिन आंतरिक समस्या जो कहीं अधिक गंभीर है, भीतर के पाप से तब तक निपटा नहीं जा सकता था जब तक यीशु बाहर थे। And that's another reason why it was good that Jesus went away to heaven. और यह एक और
कारण है कि क्यों यह अच्छा था कि यीशु स्वर्ग में चला गया। Because he sent the Holy Spirit, who is the third person of the triune God, to come and dwell in our hearts. क्योंकि उसने त्रिएक परमेश्वर के तीसरे व्यक्ति के माध्यम से पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में आने और वास करने के लिए भेजा, So that the presence and the power of Jesus comes to us through the Holy Spirit within. ताकि यीशु की उपस्थिति और शक्ति हमारे भीतर पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे पास आए। And how do we receive this gift? अब हम यह वरदान कैसे प्राप्त करें? Exactly the same way we receive forgiveness of ठीक sins. उसी तरह जैसे हम पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। Peter said, repent, confess your faith in baptism in the name of Jesus Christ, and you will receive the forgiveness of sins, Acts 2:38, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने कहा, मन फिराओ, अपने विश्वास को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा में अंगीकार करो और तुम पापों की क्षमा पाओगे और पवित्र आत्मा का उपहार पाओगे। प्रेरितों के काम 2:38। There is no extra condition required. कोई अतिरिक्त शर्त की आवश्यकता नहीं है। It's not some postgraduate degree. यह कुछ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। No, it's the beginning of the Christian life. नहीं, यह मसीह जीवन की शुरुआत है। Many people have thought that to receive the Holy Spirit, to be filled with the Holy Spirit, is something which is to come many years after we begin the Christian life. No. बहुत से लोगों ने सोचा कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए, पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए यह कुछ ऐसा है जो हमें मसीह जीवन शुरू करने के कई वर्षों बाद आना है। नहीं, ऐसा नहीं है। On the very day that you begin your Christian life, you are to receive forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit. You open your heart and receive. It's like जिस दिन आप अपना मसीह जीवन शुरू करते हैं, आपको पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है। तुम अपना हृदय खोलो और इसे प्राप्त करो। यह going to a shop where somebody has already bought a 2-volume encyclopedia for you, and if you come home with 1 volume and you discover that you don't have the whole thing. यह एक ऐसी दुकान पर जाने जैसा है जहां किसी ने आपके लिए 2 खंड के विश्वकोश के लिए पहले ही भुगतान कर दिया है। यदि आप एक खंड के साथ घर आते हैं और वहां आपको पता चलता है कि आपके पास पूरी बात नहीं है, What would you do? When you discover that both volumes were paid for, you go back to the shop and say, well, I'm sorry, I didn't take the second volume. That's paid for too. तो आप क्या करेंगे? जब आपको पता चलता है कि दोनों संस्करणों के लिए भुगतान किया गया है, तो आप दुकान पर वापस जाते हैं और आप कहते हैं, ठीक है, मुझे क्षमा करें, मैंने दूसरा खंड नहीं लिया, इसके लिए भी भुगतान किया गया है। And you take it. It's free. और आप इसे लेते हैं, यह मुफ्त है। So Peter offered forgiveness of sins and the gift of the Holy Spirit to those people who repented. इसलिए पतरस ने उन लोगों को पापों की क्षमा और पवित्र आत्मा का वरदान की पेशकश की जिन्होंने मन फिराव किया। That is what God offers us today. वही आज परमेश्वर हमें प्रदान करता है। In Hebrews 4:16 it says, "Let us come boldly to the throne of grace, so that we may receive 2 things." इब्रानियों 4:16 में हम पढ़ते हैं, आओ हम अनुग्रह के सिंहासन पर याव से चढ़े कि हमें 2 बातें प्राप्त हो। Mercy and grace. Mercy and grace are not the same. दया और अनुग्रह समान नहीं है। Mercy is referring to the forgiveness of our sins, dealing with our past. We've all sinned. We need mercy. दया हमारे पापों की क्षमा है, हमारे अतीत के साथ व्यवहार करने की बात कर रही है। हम सभी ने पाप किया है, हमें दया की आवश्यकता है। Grace is referring to God's power that He can give us to help us to be overcomers in the coming days. अनुग्रह परमेश्वर की उस सामर्थ की बात कर रहा है जो आने वाले दिनों में हमें विजेता बनने में मदद करने के लिए वह हमें दे सकता है। It's referring to the future. यह भविष्य की बात कर रहा है। And it says here in Hebrews 4:16 that let us come with boldness to God's throne so we can receive mercy to deal with the past and grace through the Holy Spirit to help us face everything that we can face in the future. और यह यहाँ इब्रानियों में कहता है 4:16 में कि हम परमेश्वर के सिंहासन पर साहस के साथ आएं ताकि हम अतीत से निपटने के लिए दया प्राप्त कर सके और पवित्र आत्मा के माध्यम से अनुग्रह प्राप्त कर सके, जिससे हमें भविष्य में हर उस चीज का सामना करने में मदद मिल सके जिसका हम सामना कर सकते हैं। Temptations, problems, trials, whatever it is. प्रलोभन, समस्याएं, परीक्षण, चाहे जो कुछ भी हो। Isn't this wonderful good news that God has provided for our past as well as our future, and all we need to do is come in? क्या यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी खबर नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे अतीत के साथ साथ हमारे भविष्य के लिए भी प्रावधान किया है और हमें केवल विश्वास में आने की आवश्यकता है। So I want to invite you right now to come to God
boldly. इसलिए मैं आपको अभी निडरता से परमेश्वर के पास आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। Don't hesitate. He invites you. Say, Lord, I believe you have dealt with my past. संकोच न करे, वह आपको आमंत्रित करता है। कहो, परमेश्वर, मुझे विश्वास है कि आपने मेरे अतीत से निपटा है, But today I also want to believe that you will strengthen me to face the future. लेकिन आज मैं यह भी विश्वास करना चाहता हूँ कि आप मुझे भविष्य का सामना करने के लिए मजबूत करेंगे। I want you to fill me with your Holy Spirit. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दो। I want you to fill my heart with your power, with grace, so that I can face the coming days. मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हृदय को अपनी शक्ति और अनुग्रह से भर दो, ताकि मैं आने वाले दिनों का सामना कर सकूं। Believe and it will be yours. विश्वास करो और यह तुम्हारा होगा।